Yes, I'm in class. Fine and good. Good morning. How are you, dear? Yes, can you hear me right now, Sidra? Yes, Sidra. Assalamualaikum. Can you hear me right now, dear? Assalamualaikum. Good morning, class. Can you hear me right now? Yes. Okay. Good. What up? Sidra Saira, thank you. You can hear my voice. Ramadan Malik to all of you. आपका रमजान मुबारक हो सबको अल्लाह ताला करीब कहते हैं कि बहुत अच्छा रमजान आए. And keep remember me also in your prayers. Yes, yesterday's topic we have discussed here is poster presentation. कि poster presentation जो है वो किस तरह से की जा सकती है. What is poster presentation? ठीक है, ये पहले हमें देखने की poster presentation है क्या. Walaikum assalam, Hira. How are you, dear? Okay, poster presentation. Just read this slide. What is poster presentation basically? G class, what is poster presentation? Remember points about the poster presentation. Poster presenters are usually offered a large area to display their material. Posters usually read at a viewing distance of more than 1 meter. You need to make sure that your poster is visible and easy to scan and dispense so that your information is understood by quickly. ठीक है, कहते हैं कि इस तरह होना चाहिए कि एक पोस्टर प्रेजेंटेशन के लिए एक पूरी की पूरी जो है जनरल पॉइंट्स मिल जाते हैं पोस्टर प्रेजेंटेशन के लिए. यूजली ये ऑफर करते हैं लार्ज एरिया डिस्प्ले होता है मटेरियल का जो कि इन्होंने करना होता है. ठीक है.
जी, इसी तरह से आगे से अगर हम लोग देखें, तो क्या करते हैं many seminars or workshops organizers supply guidelines suggesting suitable typeface style and sizes along with the conversation for titles and subheading. Use is to guide your basic poster design. When you're making poster, it is consideration to their visual appearance as well as their content. Methods of making poster जब method इसके different होते हैं. There are two popular approaches to making a poster. Approach one piece method and approach two panel method. मैंने ये कल भी आप लोगों को बताया था, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बताई थी कि किस तरह से जो है वो टू अप्रोचेस होती हैं पोस्टर प्रेजेंटेशन की. वन अप्रोच होगी वन पीस मेथड होगी और अप्रोच टू जो है वो पैनल मेथड में किस तरह से आएगा. ठीक है, वन पीस मेथड में वो इस तरह से आता है कि एक मेथड वन पीस मेथड
Okay, the presenter chooses to design the poster in a large piece. The design is prepared using a versatile software applications such as CorelDRAW or PowerPoint. It is designed and produced in A3 size or A4 size and is then enlarged as a printout stage. Note producing one piece poster can take a little while to get used to. The design is prepared using a versatile software application such as CorelDRAW or PowerPoint. It is designed and produced in A3 size or A4 size and then enlarged at a print out stage. Produced one piece poster can be used to get used detail. Approach to a panel method आ जाता है. The allocated poster area is divided up into a number of separate panels. These may consist of different elements such as text, picture, tables, or titles. Standard word processor or presentation software, e.g., Microsoft Word or PowerPoint, is used to prepare the panel for the posters. टेक्स्ट पिक्चर टेबल्स टाइटल्स कुछ भी इसमें आ सकता है पैनल मेथड में. ठीक है, आप इसमें जो है वो रिटर्न भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं. ना सिर्फ रिटर्न ऐड कर सकते हैं बल्कि इसमें डिफरेंट पैनल्स बनाकर आप जो है वो पिक्चर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं. कोई टेबल्स आपने ऐड करना है, कोई टेक्स्ट ऐड करना है, टाइटल ऐड करना है, वो सारे इसमें पैनल मेथड में आ जाएगा. A4 साइज पेपर पर ही आप लोग ये सारा कुछ बनाते हैं. अब यहाँ पर इस वक्त प्रैक्टिस में तो जो है आप लोगों की नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम हमने पोस्टर प्रेजेंटेशन करवाई थी और स्टूडेंट्स को पोस्टर प्रिपरेशन भी हम लोगों ने करवाई थी. ठीक है, स्टैंडर्ड वर्ड प्रोसेसर और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर e.g. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावरपॉइंट इज यूज्ड टू प्रिपेयर द पैनल ऑफ पोस्टर्स. ठीक है, ये पैनल मेथड जो है पोस्टर टाइटल आपके सामने है. पोस्टर टाइटल जो है इस वक्त अगर आप लोग देखें तो ये पोस्टर टाइटल जो है ये सामने आ जाता है आप लोगों के. ठीक है, मेन पर ही इधर जो है आप कोई भी पिक्चर्स दे सकते हैं पोस्टर से रिलेटेड. ठीक है, अगर आप लोगों ने पोस्टर टाइटल ही को कुछ अगर एक्सप्लेन करना है, कुछ लिखना है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं. ठीक है, डिपार्टमेंट और यूनिट का नेम जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं और जो पार्टिसिपेंट्स हैं आपके पोस्टर प्रेजेंटेशन में उनके नेम भी यहाँ पर आप डिस्प्ले कर सकते हैं. इस तरह से आगे से उन्होंने पैनल बना दिए हुए हैं. पैनल में ये देखें डिपार्टमेंट और प्रोग्राम फैक्ट्स क्या हैं आप लोगों ने वो डिटेल्स आ गई. इंट्रोडक्शन की जो है वो सारी डिटेल्स आ गई इसके यहाँ पर. ठीक है, और BN जो है वो लर्निंग आउटकम्स क्या है, यहाँ पे पास फाइंडिंग्स क्या है, कंक्लूजन क्या है. यहाँ पर देखिए आपके पास कितना एक लार्ज एरिया और वास्ट एरिया मौजूद है जहाँ पर आप लोग जो है वो काफ़ी कुछ यहाँ पर कर सकते हैं. ठीक है, इस तरह से अगर पैनल मैथड पर देखें सेकंड पैनल पे अगर हम लोग जाएँ तो आगे से इन्होंने काफ़ी जो है वो एक लार्ज एरिया का डिस्प्ले है हमारे पास. ठीक है, जिसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ पर छोड़ी हुई हैं ताकि आप लोग जो है इस पर कुछ भी कर सकते हैं. ये A4 साइज पेपर पर ही हम पोस्टर बनाते हैं. ठीक है, एक कंप्लीट डिटेल जो होती है वो उस पर ही होती है. आप यहाँ पर पिक्चर्स भी जो है वो यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं. कोई भी टेबल है, टाइटल है, कुछ भी है यहाँ पर वो आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बना सकते हैं. यहाँ पर भी देखें फाइंडिंग से
सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज जो हैं, यहाँ पर भी एक लार्ज एरिया का डिस्प्ले है आप लोगों के पास। यहाँ पर आप लोग वो वर्क कर सकते हैं। एक्शन प्लान एंड नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं वो भी यहाँ पर आपको बड़े अच्छे तरीके से जो है एक लार्ज एरिया का डिस्प्ले होता है, लेकिन it will be eye catching and in details targeted audience। देखिए आप लोग कि टारगेटेड ऑडियंस जो है, ठीक है, आप लोगों ने ये देखना है कि टारगेट ऑडियंस जो है हमारे पास किस तरह से जो है वो हैं कौन से, और उनके लिए क्या सक्सेसफुल है, क्या अच्छे तरीके से जो है वो किया जा सकता है और क्या उनके लिए अच्छे तरीके से नहीं किया जा सकता। ठीक है, बेसिक आप लोगों का मकसद क्या होता है? बेसिकली आप लोगों का मकसद ये होता है कि आप लोगों को पता हो कि हमारे टारगेटेड ऑडियंस जो है उनके लिए ये चीज़ कितनी बेनिफिशियल है। क्लियर टू एवरीवन राइट नाउ? ठीक है जी, पैनल मेथड का पता चल गया। वो जो वन पीस मेथड होगा उसमें कंप्लीट एक ही वो जो है वो सारे का सारा जो है वो हाईलाइट कर देंगे डिफरेंट कलर से। फ़ॉन्ट साइज़ आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जो आप लोगों ने इसके लिए जो देनी है हेडिंग्स देनी है, ठीक है, उसके लिए फ़ॉन्ट साइज़, इस हेडिंग का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वही होना चाहिए जो कि इसका है। ठीक है, जो इसका राइटिंग स्टाइल है वही जो है बाकी सब हेडिंग्स का भी होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर हेडिंग स्टाइल जो है वो कुछ और आप यूज़ कर रहे हैं और बाकियों के लिए जो है वो कुछ और यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर जो आप लोगों के राइटिंग स्टाइल हैं, जो फ़ॉन्ट साइज़ आपने यूज़ किया है वो भी बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जो कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग है। ठीक है, यहाँ नहीं कि यहाँ राइटिंग स्टाइल आपने कुछ और यूज़ किया हुआ है, यहाँ कुछ और यूज़ किया हुआ है, और कोशिश ये करनी है कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें आप लोगों की हो जानी चाहिए। ठीक है, इस तरह से अगर पैनल मेथड में एक ये पैनल मेथड है हमारे पास आ गया और एक भी पैनल मेथड है हमारे पास। लेकिन पैनल मेथड को उन्होंने कितने अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पर लार्ज एरिया को डिस्प्ले है हमारे पास। ये कहते हैं जी एक A4 साइज पेपर पे क्या होगा, लेकिन वो जब आप लोगों ने ख्याल रखना है फ़ॉन्ट साइज़ आपको उतना आना चाहिए कि जब आप लोगों के पास पोस्टर भी आ जाता है तो आप लोग एक अच्छे तरीके से जो है वो करें। ठीक है, बोथ मेथड्स आर मोस्ट अप्रोप्रिएट टू योर नीड्स। कहते हैं दोनों ही मेथड जो हैं वो मोस्ट अप्रोप्रिएट हैं आपकी नीड के लिए, एबिलिटीज़ के लिए, रिसोर्सेज के लिए। द पैनल मेथड allows for greater flexibility and can be adopted to changing layouts. The one piece methods can be very eye catching, making your posters outstand from the rest। क्या कहते हैं कि जो बोथ मेथड्स आपके अप्रोप्रिएट हैं आपकी नीड्स, एबिलिटीज़ और रिसोर्सेज के मुताबिक। पैनल मेथड जो है आपको अलाउ करता है ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड कैन बी अडेप्टेड टू चेंजिंग लेआउट। कहते हैं आप लेआउट इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपके पास पोस्टर प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, वन पीस मेथड होता है कैन बी आई कैचिंग, ये आई कैचिंग होना चाहिए, मेकिंग अ पोस्टर आउटस्टैंडिंग फ्रॉम द रेस्ट, और आपका जो है आउटस्टैंडिंग होना चाहिए पोस्टर प्रेजेंटेशन जो है आप लोगों की। ठीक है, आई कैचिंग होना चाहिए, अच्छे तरीके से जो है वो। इसको पढ़ें, जो नहीं समझ आती पूछा ऐसे। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, एनी सेंटेंस और एनीथिंग एल्स।
ओके जी, अगर इसमें हम स्टेजेस इंट्रोड्यूसिंग अ पोस्टर कहते हैं, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं आपका पोस्टर को यूज़ करने के लिए। चूजिंग कंटेंट आपने चूज़ करना है कंटेंट को। द फर्स्ट स्टेप इज टू clarify the task that you have been set and the type of information that you will need to include on your poster. The following questions are useful reminders of the range of the factors that you might need to consider before you start writing the text or your poster. क्या कहते हैं स्टेजेस, अगर हम इसमें देखिए डिफरेंट होती हैं जो पोस्टर प्रेजेंटेशन के लिए होती हैं, जो कि you have to keep these all points before the preparation of the poster presentation. This is most important thing. These stages in producing the poster. The first step is to clarify the tasks that you have been set. G class, choosing the content, the first step is to clarify the tasks that you have been set and the type of information that you will need to include on your poster. The following questions are useful reminders of the range of the factors that you might need to consider before you start writing the text of your poster. शाहरुख खान, आप जो है बिल्कुल एट द एंड आ गए हैं। पहले पता नहीं आप कहाँ थे। choosing a poster stage is introducing a poster. Okay, next क्या है question, should keep it in your mind. कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आपको पहले से अपने माइंड में रखने चाहिए? जी, question you should keep it in your mind before preparing the poster. What is the purpose of your poster?
ओके जी, व्हाट इज़ पर्पज़ ऑफ योर पोस्टर? कहते हैं आपका पोस्टर का पर्पज़ क्या है? टू रिपोर्ट फाइंडिंग्स, प्रेजेंट एन आर्गुमेंट, कन्विंस एन ऑडियंस और प्रमोट और प्रोडक्ट। हु विल बी लुकिंग एट योर पोस्टर? कहते हैं कि आपका पोस्टर देख रहा है स्पेशलिस्ट ऑडियंस है, आपके जनरल पब्लिक है या फिर आपके स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। जब पोस्टर प्रेजेंटेशन होती है तो जिस तरह आप रिपोर्ट राइटिंग करते हैं या प्रेजेंटेशन पहले बनाते हैं ना, तो प्रेजेंटेशन में जो है आप लोग लिखते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन से पहले भी आप लोग जो है बहुत चीज़ें जो है वो मटेरियल किस तरह का होना चाहिए और आप लोग सोचते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं चाहिए। क्वेश्चन शुड कीप इट इन योर माइंड बिफोर प्रिपेयरिंग पोस्टर। What is the purpose of your poster? Report findings, present an argument, convince an audience और आप प्रमोट द प्रोडक्ट, ठीक है। कि आपको पता होना चाहिए कि आप लोग डिस्प्ले करने जा रहे हैं पोस्टर, तो व्हाट इज योर पर्पस बिहाइंड ऑफ द टू डिस्प्ले दैट पोस्टर, प्रेजेंट दैट पोस्टर। वो विल बी लुकिंग एट योर पोस्टर। आपका पोस्टर देख कौन रहे हैं? स्पेशलिस्ट ऑडियंस हैं, आपके जनरल पब्लिक है या भी कोई और स्टूडेंट्स है, ठीक है। और फिर योर ऑडियंस बी लुकिंग फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन और अ ब्रीफ समरी। कहते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या है, ब्रीफ समरी क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों ने इसमें देखी हैं। हियर विल योर पोस्टर बी डिस्प्लेड। आपका पोस्टर जो है वो कहाँ पर डिस्प्ले होने जा रहे हैं? ना बिजी कॉन्फ्रेंस हॉल और योर डिपार्टमेंट के आपके डिपार्टमेंट में होगा या फिर आप लोगों के बिजी हॉल में होगा या फिर कौन सी जगह पे। तो वो आपने पोस्टर प्रेजेंटेशन जो है प्रिपेयर करना है पोस्टर को उस लिहाज से, ठीक है। आगे जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फ़ॉन्ट साइज़ कितना होना चाहिए। आप लोगों ने जो उसका करना है लार्ज एरिया को डिस्प्ले किस तरह से आप लोगों ने उसका फ़ॉन्ट साइज़ का देखना है, तो सारी चीज़ें किस तरह से देखनी है, ये सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है जी। इस लाइन को पढ़ें, रीड करें, कुछ नहीं समझ आता तो पूछो मेरे से, शाबाश।
G. The answer to these questions will be influence the nature of the amount of the material that you display कि आप लोगों ने जिस तरह का मटेरियल जो है वो डिस्प्ले करना है, क्वेश्चंस भी उसी बेस के जो है वो उससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है. नेचर ऑफ द मटेरियल इज कंसीडर्ड मोर एंड मोर. इफ़ यू थिंक दैट यू आर इंक्लूडिंग टू मच इंफॉर्मेशन इन योर डिस्प्ले, कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा डिस्प्ले आपके पास इंफॉर्मेशन है डिस्प्ले करने के लिए, थिंक अबाउट व्हाट कुड बी टेकन आउट. रिमेंबर दैट लेस इज ऑफन मोर इन विजुअल डिस्प्ले. कहते हैं कि आप वहाँ पे थोड़ा भी लिखेंगे तो डिस्प्ले वो ज़्यादा हुआ लगेगा, ठीक है. तो आप लोगों ने जब भी इसकी पोस्टर प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसमें आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप लोगों का जो है वो पता होना चाहिए कि इसमें आंसर जो है इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर क्या है, अमाउंट ऑफ मटेरियल क्या है आप लोगों के पास, और इस बात का ख्याल रखना है कि जो उसका डिस्प्ले होता है वो लेस भी होएगा तो वहाँ पर डिस्प्ले जब हो जाएगा तो वो मोर हो जाएगा, ठीक है. तो वो ज़्यादा हो जाता है. तो इन चीज़ों का भी आप लोगों ने जो है वो ख्याल रखना है. क्लियर टू एवरीवन राइट नाउ? जी, क्लास पोस्टर प्रेजेंटेशन का जो है मेकिंग अ प्लान, ये तो अब हम लोग कल करेंगे, ठीक है. स्ट्रक्चर ओवरऑल किस तरह का होना चाहिए, इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस स्लाइड टुमारो. एनीथिंग एल्स डू यू वांट टू आस्क फ्रॉम टुडे स्लाइड? आज के स्लाइड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप लोग बता दें. और बहुत से स्टूडेंट्स ने जो है मुझे गूगल क्लासरूम पर जो है वो सेंड कर दी थी, लेकिन आज की जो है वो लास्ट डेट है. इमन आप कोशिश करें कि आप जो है उस पर ही दोबारा मुझे गूगल क्लासरूम पे ही कर दें, क्योंकि मुझे कल काफ़ी स्टूडेंट्स ने की हैं, ठीक है. व्हाट्सएप पे, ठीक है, व्हाट्सएप पे जो है वो हो जाता है मुश्किल मेरे लिए. ठीक है, नहीं
इन्होंने नहीं की, यमन ने नहीं मुझे की, बल्कि मुझे इन्फॉर्म किया था रूप में शायद की। ठीक है, रूप इज हियर विद मी राइट नाउ। जी रूप आपने मुझे सेंड किया था व्हाट्सएप ग्रुप में ही अपना काम। वेयर आर यू रूप राइट जी रूप ने किया था मुझे मेमो राइटिंग जो है वो सेंड की थी रूप ने व्हाट्सएप ग्रुप पे, लेकिन आप उस पर भी करते मुझे। ठीक है, कोशिश करें। और बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक असाइनमेंट अपनी जो है क्विज असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाई वो करवाते, वरना उनका जीरो डिस्प्ले हो जाता है, जीरो लगा देंगे। ठीक है जी, पता चल गया आपको उनको कोई प्रेजेंट कब लगने लगी है, अटेंडेंस लगने लगी है, तो बस जो है हम लोग अब अटेंडेंस के लिए तैयार हो जाएंगे।